everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy, where we provide you the quality content for UPSC, Law and Commerce. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप थ्योरीज पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में लीडरशिप थ्योरीज पार्ट 1 में हमने कवर किया था लीडरशिप के बारे में। हमने समझा था लीडरशिप के टाइप्स और लीडरशिप थ्योरीज। थ्योरीज में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि थ्योरीज विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल ट्रेट्स, बट आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे theories based on behavior and situation. Behavioral theories of leadership. Till now we have discussed the theories which were based on the natural traits to become a leader. We studied that leaders are born, not made. But in these theories we will see that the leadership depends upon the role behavior rather than traits. बिहेवियरल थियोरीज ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं लीडर्स और नॉन लीडर्स के बीच में। फर्स्ट थियोरी इज गिवन बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेम्स माउंटन। इस थियोरी में एक मैनेजरियल ग्रिड डिफाइन किया गया है, मतलब रॉबर्ट ब्लेक और जेम्स ने एक लीडरशिप ग्रिड प्रेजेंट किया था, एक मॉडल जिसमें 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स प्रेजेंट उन्होंने करे। अब ये लीडरशिप स्टाइल्स 2 फैक्टर्स पे बेस्ड है। फर्स्ट, कंसर्न फॉर पीपल एंड अदर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। Here is the managerial grid. See, in this, on the x-axis, it's a concern for production, the first dimension of the theory, and the second dimension of the theory is concern for people. This goes from low to high, that is from 1 factor to 9 factor. In between there is a factor 5 for concern for production. In the same way, for concern for people, it goes from low to high. It starts with 1 and it ends with 9. In between there is a point 5. This means in the starting, concern for production is less, and then there is a high concern for production, and in concern for people we will start with the less concern for people and we will go with the high. Let's start with the first point, that is impoverished. इसमें concern for production भी 1 है, concern for people भी 1 है। इस स्टाइल में लीडर रिजल्ट्स पे और टास्क पे कंसर्न नहीं रखता। इस केस में सबऑर्डिनेट्स को वो फ्री छोड़ देते हैं एंड they let the subordinates do the work in their own style. Then if we will increase the concern for production, it will go to 9 point. Concern for production concerns with only task or work. So therefore the leadership style here, it will be authoritarian. यहाँ पे concern for people सबसे कम है, that is 1. तो लीडर पीपल को इंस्ट्रूमेंट समझता है अपने प्रोडक्शन के लिए और हेवी एम्फेसिस रहता है जॉब पे या फिर टास्क पे। अगर हम कंसर्न फॉर पीपल इंक्रीज कर देते हैं और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मिनिमम रहता है, तो इस स्टाइल को हम क्या कहते हैं? कंट्री क्लब। इस स्टाइल में वर्क जो करा जाता है वो एक मिनिमल अथॉरिटी के साथ किया जाएगा। सोशल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड इफ आई विल इंक्रीज बोथ concern for people and concern for production, this style is known as team leader. In this style, leader integrates the people and the production. मतलब individual goals और organizational goals दोनों accomplish होते हैं इस leadership में. But there is a middle of the road. That means medium of production, medium of the people. In this, दोनों के ऊपर concern रखा जाएगा. So here is how the managerial grid presented 5 styles of leadership, that is country club, team leader, impoverished, authoritarian and middle of the road, in which there is an expression of concern for production and concern for people. Next theory is based on Michigan studies. It is known as Michigan studies because it was commenced at the University of Michigan in 1950s. अब इस स्टडी में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और लीडरशिप स्टाइल्स आइडेंटिफाई करे हैं जिससे लीडर्स के अमंग और एम्प्लॉयज के अमंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और जॉब सेटिस्फैक्शन देखा गया। अब इस स्टडी में 2 लीडरशिप स्टाइल सामने आए, एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एम्प्लॉय ओरिएंटेड
Employee oriented is also known as democratic style of leadership. See, it is same as we have discussed in the concern for people in the managerial grid. मतलब employee orientation में there is a concern for human beings, for employees, उनके well-being को ध्यान रखा जाता है और उनका well-being ही organization का central point है. अगर ये स्टाइल अडॉप्ट हो जाता है तो इससे क्या इम्प्रूव होगा? वर्क फ्लो इम्प्रूव होगा, इंटरैक्शन इम्प्रूव होगी और एम्प्लॉयज के अमंग सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी. ये स्टाइल सक्सेसफुली अडॉप्ट होगा हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड दे सीक रेगुलर इंटरैक्शन. Employee orientation is based on the people. It is people oriented leadership style. सेकेंड इज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन. इसके अंदर क्या होगा कि मेन फोकस इज ऑन द टास्क कंप्लीशन. टास्क चाहिए लीडर को, चाहे कोहेजन से हो, चाहे डिससैटिस्फाइड रहे एम्प्लॉयज, बट द एंड इज फॉर द प्रोडक्शन. तो इसके अंदर टर्नओवर इम्प्रूव तो हो जाएगा, लेकिन एब्सेंटिज्म और डिससैटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगा. अब ये वाला स्टाइल ऑफ लीडरशिप इस केस में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे लो लेवल्स काम कर रहे हैं और जहाँ पे वर्कर्स को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है और उनको रेगुलरली फोकस करना पड़ता है लीडर्स को, तभी ये लीडरशिप स्टाइल लीडर्स अडॉप्ट कर सकते हैं. अनदर लीडरशिप स्टाइल was identified in Ohio study. Ohio study is known as Ohio because it was commenced at Ohio State University and it is the study of 1945. अब इसके अंदर कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए गए जिसने लीडरशिप स्टाइल्स को जनरेट करा. अब ये जो स्टडी है ये बेस्ड है, इस स्टडी में दो क्वेश्चनियर्स प्रेजेंट किए गए थे. First was LDBQ, that is a leader behavior description questionnaire, which was for the leaders of the organization. And the other one is for SBDQ, that is supervisor behavior description questionnaire, that was for the subordinates. अब इस स्टडी में कुछ ऐसे स्टाइल डिस्कस करे गए हैं और ये स्टडी ये फोकस करती है कि सिर्फ एम्प्लॉय ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड नहीं होगा. Ohio State leadership style is based on two dimensions: initiating and consideration. Initiating is same as task orientation, where leader will believe in defining his relationship between the subordinates. वो establish करेंगे एक formal lines of communication and they will decide कि task कैसे perform किया जाए. Consideration is same as employee orientation, जहाँ पे लीडर का फोकस रहेगा human well-being, ना कि task performance. Now Ohio states that सिर्फ task orientation, employee orientation ही नहीं, rather उन दोनों के combinations भी possible हैं. See, in Ohio style, initiating structure and consideration style are placed in a such a way that it is like starting from low point and will increase to high, then starting from low point in consideration it will increase to high. See, in this structure it is clearly shown that rather than two models like for people and for task, there can be the four models. That means the combination of people and task, where we can define leadership styles as a style with a low consideration and low structure, with low consideration but high structure and low consideration, high consideration and high structure. Other model is tri-dimensional leader effectiveness model. This model is given by Professor Bill Redden. अभी तक हमने सिर्फ दो डायमेंशंस पढ़ी थी, पीपल एंड टास्क. प्रोफेसर बिल रिडन ने एक और डायमेंशन ऐड करी है, दैट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस मतलब कि कितना रिजल्ट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए पॉसिबल है अचीव करना. सो बेसिकली थ्री डायमेंशनल में अब थ्री डायमेंशंस हो गई हैं, टास्क, पीपल एंड इफेक्टिवनेस. The model is explained with these three dimensions, one on x-axis, one on y and one in between them, because आप कोई सा भी combination adopt करो, आपका जो main motive है वो क्या होगा, effectiveness. Basically your task needs to be accomplished. आप कोई सा भी model accept करो. In this tri-dimensional style, a model was created
जिसके अंदर कुछ एक स्टाइल्स अडॉप्ट किए गए हैं लीडरशिप के. टास्क ओरिएंटेड ऑन एक्स एक्सेस, relationship orientation on y-axis, again it is going from low to high. So if task orientation and relationship orientation are low, this is known as separated. If task is high, relationship is low, it is known as dedicated. If task is low, relationship is high, it is known as related. If both are high, task and relationships are high, it is known as integrated. So four models of tri-dimensional styles are related, integrated, separated, and dedicated. After behavioral theories, we need to focus on situational theories. Because behavioral theories expresses some behavior, but that behavior changes when situation changes. Therefore, situational theory में leadership वो different leadership styles adopt करता है जो situation demand करती है. The first model is given by Fred Fiedler in 1960. This model is also known as Fiedler's contingency model. इस मॉडल के अकॉर्डिंग लीडरशिप का कोई एक बेस्ट स्टाइल नहीं है, बल्कि लीडरशिप का बेस्ट स्टाइल डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. अब लीडरशिप स्टाइल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे. फर्स्ट, लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशनल फेवरेबलनेस. लीडरशिप स्टाइल जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो और वो सिचुएशन जिसमें वो अडॉप्ट होगा. सो बेसिकली थ्री फैक्टर्स इस मॉडल में, देयर आर थ्री डायमेंशंस इन दिस मॉडल. Now this model expresses three dimensions. First is leader-member relationships. This dimension means कि कितना टीम अप, कितना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लीडर और मेंबर के बीच में है. मतलब क्या मेंबर्स लीडर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्या उनका इन्फ्लुएंस है अपने मेंबर्स के ऊपर. सेकेंड पार्ट इज टास्क स्ट्रक्चर. जो टास्क है वो कैसा है, क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है, वेग है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड है. मतलब आपकी टीम को उसके बारे में नॉलेज है या वो टास्क बिल्कुल ही नया है. थर्ड डायमेंशन है लीडर्स पोजीशन पावर. मतलब कितनी अथॉरिटी है उसके पास, कितना पावर लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्रुप में, और उसके पास कितनी अथॉरिटी है किसी को रिवॉर्ड और पनिश करने की. अब फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल को हम 3 स्टेप्स में अप्लाई करेंगे. स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर लीडरशिप स्टाइल. आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है. जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको पता होगा कि इस लीडर ने आपको इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस किया था, तो ये स्टाइल अडॉप्ट हम कर सकते हैं. सेकेंड इज आइडेंटिफाई योर सिचुएशन. सिचुएशन मतलब लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है. जो टास्क आप कर रहे हो वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है. मतलब वेग है या फिर क्लियर है. मेंबर्स को एक्सपीरियंस उसमें है या फिर नहीं है. या अगर जो आपके पास पावर है ओवर योर टीम इज स्ट्रॉन्ग और वीक. स्टेप थ्री में फिडलर मॉडल ने में आपको एक बता रखा है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल सूट करेगा बेस्ड ऑन स्टेप 1 एंड स्टेप 2. नाउ लेट्स डिस्कस द मॉडल. अब हम इस मॉडल में ये देखेंगे सबसे इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन 3 डायमेंशंस क्या होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ LPC. LPC का मतलब है वो लीडर जिसका फर्स्ट फोकस रिलेशनशिप बिल्डिंग होगा. अब ये LPC लो रहेगा या हाई रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स. फर्स्ट कैटेगरी इज गुड. अगर लीडर मेंबरशिप रिलेशनशिप्स गुड है तो टास्क स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड है. अगर लीडर पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो LPC लो होना चाहिए. वीक है तो LPC लो होना चाहिए. अगर टास्क स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड है, अगर लीडर पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो लो LPC, वीक है तो फिर हाई LPC. सेकेंड सिचुएशन में लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स पुअर है. अगर टास्क स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड है, लीडर्स पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है, हाई LPC, वीक है, हाई LPC. अगर स्ट्रक्चर इज अनस्ट्रक्चर्ड, लीडर्स पोजीशन पावर इज स्ट्रॉन्ग, देन हाई LPC, if weak then low LPC. So this is the most effective leadership under these 3 conditions. अगर 3 conditions pre-specified हैं तो आपका most effective leadership style क्या होना चाहिए, ये मॉडल एक्सप्रेस करता है.
Second theory is Hersey and Blanchard. It is also known as life cycle theory of leadership. It is a second type of situational theory जिसके अंदर three variables हैं. Three variables. First variable is कि first situation is when the leader shows task behavior and the relationship behavior और कितना maturity level followers express करते हैं. मतलब इस मॉडल में आपके थ्री वेरिएबल्स हैं कि ऐसे सिचुएशन कि जिसके अंदर लीडर का टास्क और रिलेशनशिप बिहेवियर कैसा है और फॉलोअर्स का मैच्योरिटी लेवल कैसा है. दिस इज द ओनली मॉडल जहाँ पे फॉलोअर्स पे भी लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करती है कि आपके फॉलोअर्स का मैच्योरिटी लेवल कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो चेंज हो सकता है. नाउ दिस इज द मॉडल ऑफ लाइफ साइकिल थ्योरी where this graph shows that maturity level is first increasing and then declining. On x-axis there is a task behavior ranging from low to high. Then on y-axis there is the relationship behavior ranging from low to high. In the case of maturity, leadership needs to adopt two styles, participating and delegating. Participation and delegation तभी होगा जब फॉलोअर्स आपके मैच्योर हैं. इस केस में लो टास्क लो रिलेशनशिप या फिर हाई टास्क और लो रिलेशनशिप हम अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर एम्प्लॉयज इमैच्योर हैं, वी हैव टू अडॉप्ट सेलिंग एंड टेलिंग लीडरशिप स्टाइल वेयर रिलेशनशिप विल बी हाई बट द टास्क कैन बी हाई और लो. अगर एम्प्लॉयज मैच्योर हैं तो रिलेशनशिप लो रखना चाहिए, टास्क कैन बी हाई और लो. अगर इमैच्योर है फॉलोअर्स तो रिलेशनशिप हाई रखना चाहिए, टास्क कैन बी हाई और लो. नेक्स्ट थियोरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी इज हाउस पाथ गोल थियोरी गिवन बाय रॉबर्ट जे हाउस. बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोटिवेशन थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड द लीडरशिप थ्योरी, ओहियो स्टेट लीडरशिप थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडर टू मेजर रोल्स प्ले करते हैं. फर्स्ट इज टू क्रिएट अ गोल ओरिएंटेशन, मतलब एक वो गोल सेट करते हैं इंडिविजुअल्स के माइंड में कि यस दिस इज द गोल, दिस इज व्हाट वी हैव टारगेट. एंड नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द पाथ टुवर्ड्स द गोल. एंड देन अगर एक गोल डिसाइडेड है तो उस तक का पाथ क्या है कि वो गोल अचीव हो जाए, लीडर्स उसे इम्प्रूव करें. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो लीडरशिप स्टाइल से मोटिवेट होते हैं और अचीव करना चाहते हैं उस गोल को, मतलब वो मोटिवेटेड रहते हैं. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड द लीडरशिप. बेसिकली अ लीडरशिप स्टाइल व्हिच मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू अचीव सम गोल. In this, leadership styles are of four types: directive, supportive, participative, and achievement oriented. Let's start with directive. Directive means, see, a leader needs to show the direction. अगर टास्क एम्बिग्यूअस है, मतलब क्लियर नहीं है, वेग है, तो फॉलोअर को बताना पड़ेगा कि ये पाथ है और आपको इसमें ऐसे चलना है. ओहियो स्टडीज में जो हमने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, ये उसके सिमिलर है. ये वाला स्टाइल तब एप्लीकेबल नहीं होगा जब आपका टास्क क्लियरली स्ट्रक्चर्ड है. दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन जब आपका टास्क स्ट्रक्चर्ड नहीं है और लीडर को फॉलोअर्स तक पाथ पहुंचाना है. पहले जो फॉलोअर्स हैं वो लीडर्स को फॉलो करेंगे, जिस पाथ पे लीडर चल रहा है उसी पाथ पे फॉलोअर्स उन्हें लीड करेंगे. दिस इज डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल. सेकेंड टाइप इज सपोर्टिव. Now this is similar to the consideration structure, मतलब people oriented. अगर टास्क स्ट्रेसफुल है, फॉलोअर्स को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, तो जो लीडर्स हैं वो ये स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, दैट इज अ सपोर्टिव स्टाइल एंड इन विच लीडर्स सपोर्ट देयर फॉलोअर्स इमोशनली. Now the third type is participative. अगर टास्क नॉन रेपिटेटिव है और लीडर फेसेस सम यूनिक एंड changing situations, तो लीडर ऑल्सो रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मेंबर्स. अब वो मेंबर्स के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लीडर्स और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि व्हाट कैन बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट द गोल्स कैन बी
achieved. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ग्रुप के साथ कंसल्ट करने के बाद ही ग्रुप को दी जाती है. लास्ट इज अचीवमेंट ओरिएंटेड. अगर टास्क क्लियर नहीं है और नॉन रेपिटेटिव भी है तो लीडर अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ चैलेंजिंग गोल सेट कर देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि वो गोल अचीव उन्हें करना है. Therefore, it is a achievement-oriented leadership style. Now we have covered all the theories of leadership, but there is a difference between successful and effective leader. Successful leader is someone जो कि हम decide करेंगे कि उन्होंने desired result achieve करा या फिर नहीं. मतलब एक result को achieve करने में उनका success रहा या failure. अगर success रहा है तो वो successful leader है और अगर फेलियर रहा है तो सक्सेसफुल लीडर नहीं है. इफेक्टिव लीडर्स जो होते हैं वो एक प्रोडक्शन के साथ साथ अपने फॉलोअर्स की नीड्स को भी फोकस करते हैं. मतलब उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ साथ एम्प्लॉयर्स के पर्सनल गोल्स भी इंपॉर्टेंट है और दे ट्राई टू लिंक बिटवीन बोथ ऑफ देम, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स. तो इफेक्टिव लीडर वो होगा जब एक हार्मनी वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर्स को उनके पर्सनल गोल्स में और organizational goals में. We also need to discuss difference between transactional and transformational leaders. This difference is given by Burns. See, if I talk about transactional leaders, these are the leaders who are concerned with the transaction. That means who are concerned with the goals. They guide and motivate their followers to achieve goals. They clarify their roles, their task requirements so that they effectively achieve the goals. उनका मेन कंसर्न है कि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होना चाहिए. लीडर उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि ये उनके स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनके प्लान ऑफ एक्शन है, आपको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है. देन अगर कोई भी डेविएशंस होते हैं तो करेक्ट एक्शन वो लेते हैं. तो देयरफॉर दिस लीडरशिप स्टाइल इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. Moreover, the leaders under this style avoids any decision making. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही फॉलोअर्स को देते हैं कि जैसे उन्हें सिचुएशन सही लगती है उसी के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सकते हैं. दो वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बता देते हैं, बट जो डिसीजन मेकिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयज खुद ले सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स वो होते हैं जो कि फॉलोअर्स के बिलीफ को इफेक्ट करते हैं. मतलब इनका फोकस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे नहीं है, ये विजन और मिशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट फॉलोअर्स उन्हें ट्रस्ट करें और उनको फॉलो करें. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज लीडर इस केस में पर्सनल अटेंशन देता है एम्प्लॉयज को और उन्हें एडवाइस करता है. बेसिकली इस टाइप ऑफ लीडरशिप में पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स दोनों अचीव हो जाते हैं. So, leadership types, style and theories all are covered so you can prepare well for your examination. After this video, you can try the MCQs which we will upload by today so that you have a clear understanding of the leadership concepts, styles and theories. And in theories, all the theories, behavioral and situational both. I hope ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. If you like this video and like to watch similar videos, then like and subscribe YouTube channel of Nyay Academy. Thank you. Have a nice day.